ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई डोंट नो, हाँ मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूँ? मुश्किल है। नो सर। नो सर। है जी, आप बताएं। यस सर, नजर आ रहा है। थैंक यू वेरी यस सर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, आज हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, द लेक्चर बिफोर द लास्ट वन। एंड इसके अंदर जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट आर आईवी, व्हाट इज डीवी, व्हाट इज फ्रेमवर्क, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, बट वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन द मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स। लेकिन एक दफा उनसे भी गुजरते जाएंगे जो कि आईवीज हैं, डीवीज हैं, ताकि आप उसको एक तरह से रिफ्रेश हो। I'm just going to move next. आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको ये भी पता है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं? ग्रेड्स। ग्रेड्स को हम वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हर एक का ग्रेड डिफरेंट होता है। इवन कि मेरा ही ग्रेड ए सब्जेक्ट में मे बी एक्स हो, दूसरे में वाई हो, एक में एक्स माइनस हो, दूसरे में वाई माइनस हो, वाई प्लस हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So grade is a variable, and then we have driving style is a variable, motivation is a variable, because everyone has different motivation level at any given point of time. अब this is important, this is a new thing जो कि मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई हुई. This is the difference between a continuous variable and a discontinuous variable. Continuous variable कौन सा होता है? For example, age, time, they both are continuous variables. On the other hand, the discontinuous variables होते हैं, for example, number of chairs are discontinuous variable, या इसका एक और नाम है discrete variables. So there are main two dichotomies as far as the variables are concerned. Main one is the continuous variable, the other one is the discrete variable. The main difference between these two types of variables, continuous and discrete, can be remembered by the continuous variables are measurable, while the discrete variables, they are countable. For example, number of chairs in a classroom, क्या number of chairs को हम measure करते हैं या number of chairs को हम count करते हैं? We count them. Therefore, the number of chairs is a variable, but it is a discrete variable. On the other hand, age को हम measure करते हैं, length को हम measure करते हैं, height को हम measure करते हैं, या इसको count करते हैं. Motivation को हम measure करते हैं या count करते हैं. तो अगर तो हम मोटिवेशन को, हाइट को, लेंथ को, टाइम को, ब्रेथ को, इनको हम मेजर करते हैं, तो ऑल दीज वेरिएबल्स आर द कंटीन्यूअस वेरिएबल्स. तो मेन डाइकोटोमी, द मेन factor that distinguishes between these two types of variables is either they are measurable. If they are measurable, then they are continuous variables, or they are discrete variables only if they are counted. So these are the two main types of variables, discrete and continuous. ये आप लोगों को पता है अच्छी तरह. One is independent variable, the one which has an effect on the other variable. The one which affects the other variable is the independent variable. The one which is affected by another variable is the dependent variable. अभी आगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 6 डिफरेंशिएशंस हैं जो कि पॉइंट्स फॉर्म में लिखी हुई है. एंड द अदर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो कि आज मेन हमारा कंसर्न है, दैट इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल्स एंड द मीडिएटिंग वेरिएबल्स, जो कि हम देखेंगे कि वो क्या है. डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से ही साफ जाहिर है, एट सेल. अब ये देखो ये लिखा कैसे हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट. डीवी, और इट इज आल्सो नोन एज outcome variable, it is also known as effect variable, or which is commonly denoted by y. And
the variation in y, जैसे कि उसमें स्लाइड में लिखा भी हुआ है, the change in y is affected by or is influenced by some other variable, जिसको हम IB कहते हैं, बट इस वक्त we're talking about DV. तो IB affects DV. The variance, जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, the variance in y is accounted for by x. यानी कि any variance क्या है? Change. Any change, बेशक वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, any change in y in dependent variable is due to is the result of the influence of another variable. उस वेरिएबल को हम IB कहते हैं, पर जिसके अंदर चेंज आता है बिकॉज ऑफ दी अनदर वेरिएबल, उसको हम DV कहते हैं. ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया ना, बिकॉज ऑफ, ये थोड़ा आपने कॉशियसली यूज करना है. मोस्टली इट इज यूज्ड एज it is influenced, the DV is influenced by, the DV is impacted by, the DV is affected by, the DV is affected by, instead of using the word it is caused by. So remember, any variable which is affected by another variable is a dependent variable, which is mostly in mathematical terms denoted by capital Y. So this is the dependent variable. आगे चलते हैं. Then we have ये जो मैंने कहा था कि we have 6 differences between the two. X is the independent variable, y is the dependent variable. X is, जैसे point number 1 है, is assumed to be the cause of y. But remember, the word cause has to be taken, is used very cautiously. If X is the stimulus, then Y is the response. X is predicted from and predicted to is the Y variable. यानी कि this variable is predicted from the variable which is known as IB. Then we have antecedent. The IBs are mostly also known as the antecedents. And antecedents are those variables which are there to which affects the other variable. यानी कि इस DV की जो प्री कंडीशंस हैं उनको हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं. यानी कि अगर वो एंटीसीडेंट्स मौजूद है, देयर आर लाइकली चांसेस कि ये वाला DV भी मौजूद होगा और इफेक्ट हो रहा होगा. Then Y is manipulated and X is manipulated and Y is measured. X is manipulated का मतलब क्या है? बिकॉज हमने ये देखना है कि x का इफेक्ट y पे क्या हो रहा है, लिहाजा हम x को मैनिपुलेट करते हैं. मैनिपुलेट का मतलब क्या है? इसको हम इधर इंक्रीज करते हैं, इसको या इधर डिक्रीज करते हैं, या इसको हम स्टेबल रखते हैं. व्हाटएवर द रिसर्चर वांट्स इट टू बी. कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम इसको इंक्रीज करें, मैनिपुलेट करें एंड इसका रिजल्ट इसके ऊपर देखेंगे. अगर इसको इंक्रीज करने से इसके ऊपर ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज मैनिपुलेट. इसको मैनिपुलेट करके हम इसको मेजर करते हैं. तो दैट इफ दिस वेरिएबल, if this is measured by manipulation of other variables, then this is the DV. And then of course, जैसे कि आप लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि x हमारा प्रेडिक्टर है और y जो हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है. ये लफ्ज जरा ध्यान में रखिएगा. अक्सर जो अगर आप इसको कहीं पे सुनोगे, बुक में पढ़ोगे, तो y को क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहा जाता है और x को प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहा जाता है. IB और DV के अलावा इनके ये नाम भी हैं. ओके जी, ये जरा एक एक्सरसाइज है. सर अली ज्वाइन करना चाह रहा है. अली ज्वाइन स्टूडेंट को रोका हुआ है. ओके, नो प्रॉब्लम. समझ आ गई है कि उनको परमिशन चाहिए. सो जी अली मैं ज्वाइन करना चाह रहे हैं. सो अब आप लोगों से ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने अभी जरा मैं एक दफा पहली में, एन अप्लाइड रिसर्चर wants to increase the performance of organizational members in a particular bank. अब ये बताएं कि इसके अंदर DV क्या है. सोचें, पढ़ें इसको.
और मुझे बताएं कि इसके अंदर डीवी क्या है, और दूसरा भी पढ़े, मुझे बताएंगे इसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट के अंदर डीवी क्या है। मीनवाइल कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन इन किया है, मैं उनको जी बताएं। एनीवन? सर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डीवी है। ये तो हो गया ठीक। व्हाट अबाउट द अदर वन? द मार्केटिंग मैनेजर वंडर्स व्हाई द रीसेंट एडवर्टाइजमेंट strategy does not work. सर सेकंड एडवर्टाइजमेंट है डीवी हमारी। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। या अच्छा मेरे ध्यान में पता क्या, मेरे ध्यान में ये है, ये जो सेकंड वाला है, a marketing manager wonders why the recent advertisement strategy does not work. So it's like project success, इस सब ही कोई चीज है। यस सर, ये जी बताएं। सर ये परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी हो जाएगा। सही है सर। क्या सही है? आई थिंक जैसे अली ने बताया ना सर, प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो ज्यादा सही लगता है इसमें सर। प्रोजेक्ट सक्सेस का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी सक्सेस या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी फेलियर, ये हमारा डीवी है। Instead of advertisement strategy itself, it is actually the other way around. Okay जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों को पता है कि क्या होते हैं, so let's not, but एक्सरसाइज आप मुझे बताएंगे अब इसमें क्या है। पहले वाले में आईवी क्या है और दूसरे वाले में आईवी क्या है? प्रोडक्शन लेवल सर। गुड सुपरविजन आईवी। वो प्रोडक्शन यस सर, लेवल गुड सुपरविजन होगा सर आईवी। And what about training in the first one? यस सर, ट्रेनिंग भी हो सकता है। हाँ नहीं, दोनों हैं। बिल्कुल सर, दोनों है। और डीवी क्या है पहले वाले में? सर प्रोडक्शन लेवल ऑफ वर्कर। प्रोडक्शन लेवल। What about the second one? ऑफ वर्कर्स। सर बाइंग एंड सेलिंग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यस, मेरा भी यही ख्याल है कि बाइंग एंड सेलिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम इज द आईवी एंड द प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स आर द डीवी। ओके जी, अब आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर ली। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जहां पे मेरी तो कम से कम सुई अटकी हुई है कि ये आज हमने इसको लाजमी कंप्लीट करना है, और बहुत आसान है। खैर अब हमारे पास क्या है, आईवी और डीवी रिलेशनशिप है। आईवी और डीवी का रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन मुझे ये अंदाजा है, देखो एज ए रिसर्चर, इसी तरह एज ए रिसर्चर आपको भी ये अंदाजा होगा व्हाई डू वी स्टडीइंग एंड डूइंग लिटरेचर रिव्यू के, क्योंकि मैंने आईवी डीवी रिलेशनशिप तैयार किया है, या जो मुझे नजर आ रहा है, ये लिटरेचर सपोर्ट कर रही है या थ्योरी सपोर्ट कर रही है आईवी डीवी रिलेशनशिप को। अगर इसके अंदर ये वाला वेरिएबल आ जाए, एनी वेरिएबल, तो आईवी डीवी का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या आईवी डीवी का रिलेशनशिप as a result of inclusion of another variable
इन दोनों का रिलेशनशिप वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाएगा। अनदर ऑप्शन, अनदर पॉसिबिलिटी, इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। यानी कि पहले इसको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा था, बट बाय द इंक्लूजन ऑफ अनदर वेरिएबल अब इसको इंक्रीज करने से दूसरा जो डीवी है वो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज कर रहा था, बट एज अर्ली एज वी इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएबल उनके जो दरमियान में रिलेशनशिप था वो इनवर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग, वीक, इनवर्स। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी मुश्किल पेश आए कि यार मुझे मॉडरेटिंग वेरिएबल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होगा, बाद में एकदम जेल से निकल जाता है, तो जिस तरह केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कैटलिस्ट, द मॉडरेटिंग वेरिएबल वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? दो एलिमेंट्स के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको तेज कर देता है या उसको स्लो कर देता है। इसी तरह मॉडरेटिंग वेरिएबल्स भी इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, वीक कर देता है या इनवर्स कर देता है। इफ यू और आई हैव एनी वेरिएबल व्हिच हैज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है। याद रखिएगा कि मॉडरेटिंग अब आप कहोगे सर मेरे पास एक मॉडल है, उसमें एक वेरिएबल है जो कि मॉडरेटिंग भी बन सकता है और वो आईवी भी बन सकता है और वो मीडिएटिंग जो कि अभी हमने पढ़ना है वो भी बन सकता है, तो मैं उसको क्या बनाऊं? याद रखिएगा द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द कॉल ऑफ द रिसर्चर। वो कौन सी थ्योरी को लेकर चल रहा है जो कि उसके मॉडल को सपोर्ट करती है। तो अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग क्या चीज होती है। जब हम वो चीज देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ यार ये वाला जो वेरिएबल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट वेरिएबल शुड बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर और अ मीडिएटर और मे बी एन आईवी। तो ये हम उसका इस सवाल का जवाब उस वक्त देंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम याद रखिएगा द मॉडरेटिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच ईदर स्ट्रेंथन्स, weakens or inverses the relationship between IV and DV. Such a variable is known as a moderator variable. The moderator हमने कहां से पिक करना है? क्या क्या वो moderator हमें लग रहा होगा कि वो IV है? The answer to this question will be based on the literature review and the theory that is being used to support your theoretical the theory which is being used by you for your research framework, उसको हम वहां पर फिर मॉडरेटर के तौर पर उस वेरिएबल को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लिटरेचर रिव्यू एंड द थिंग। नाउ लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट दिस राइट अप जो कि बुक में है कि वो इस बारे में क्या कहता है अबाउट द मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो मैं इसको रीड आउट करता हूं, रीड आउट लाउड करता हूं फॉर यू। अब वेरिएबल आर मॉडरेट्स the strength of x y यानी कि x and y relationship, strong relationship between the library facility and performance of students, depends on the interest and inclination of students. So it modifies the original relationship, it moderates the original relationship. तो अब जरा मैं आपको दोबारा ये चीज जो है मैं अगर आपको ये नजर आ रहा है तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ। So have a look at this one. Let me share the complete screen so that you see what I am doing. So let's have a look at this one. देखो अब क्या है हमारे पास है the strong relationship between library facility and performance of students. तो अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि if anyone has a very good library facility,
ये कॉमन सेंस की बात है, राइट? तो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटी, राइट? ये हम लोगों को पता है कि ये एक, लेट्स से जस्ट टेकिंग इट एज अ आईवी, तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है ना बड़ी अच्छी रहती है। यानी कि अगर ये हमारे पास अच्छी फैसिलिटी होगी सो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। ये बात तो आपको पता है, आप होंगे हाँ भाई दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, दिस इज हैपेंस एंड सिमिलर स्टफ लाइक दैट। तो लेकिन आपको ये भी पता है यार कि अगर ऐसी ही बात है तो ऐसा करते हैं। सर अहमद को कहते हैं कि जैबिस की लाइब्रेरी की फैसिलिटी अच्छी बनवा दें, बहुत ही अच्छी बनवा दें, हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये देखें सर, ये रिसर्च की फाइंडिंग्स भी यही कहते हैं। वेल, द रिसर्च फाइंडिंग्स बिल्कुल यही कहते हैं। लेकिन अब जो तीसरी चीज है ये देखिएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन of student body, of students. So मॉडरेटर ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऊपर क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं इसको नीचे बना रहा हूं। इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब देखिएगा ये, अब देखो जितनी, अब ये क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ, इसको मैं गुड का लफ्ज इस्तेमाल, अगर अच्छी, जितनी अच्छी लाइब्रेरी की फैसिलिटी होगी उतनी ही अच्छी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दैट। अच्छा, अब ये मैं कह रहा हूं कि ये इट विल मॉडरेट द रिलेशनशिप, ईदर दिस विल स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप और दिस विल डिक्रीज दिस रिलेशनशिप और दिस विल इनवर्स दिस रिलेशनशिप। तो मैं कहूंगा कि जनाब ये देखिएगा, आई एम सो सॉरी, इसका ये जो डायरेक्शन जो है वो कोई यस नहीं बांधी। ओके, सो इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट। अब ये देखिएगा, दिस, ये जो, अब जब हम एरो यहाँ पे इन दो के रिलेशनशिप के दरमियान इससे एरो बनाते हैं, दिस दैट मीन्स रिसर्च की जो रिटन लैंग्वेज है उसके अंदर इसका मतलब है कि ये वाला वेरिएबल मॉडरेट कर रहा है। यानी कि अब कोई भी इस रिसर्च मॉडल को पढ़ेगा वो समझ जाएगा ये आईवी है, ये डीवी है, ये मॉडरेटर है। दिस मॉडरेटर ईदर इज गोइंग टू strengthen this relationship, weakens this relationship or reverses this relationship. तो अगर ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हायर द बेटर द फैसिलिटी द बेटर द परफॉर्मेंस, बट इफ द इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट इज आल्सो हायर, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रिलेशनशिप है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो इसका रिलेशन भी डिक्रीज करेगा। तो ये अब देखो, ये जो मॉडरेटर है ये हमें साफ साफ बता रहा है कि भाई ये इसके रिलेशनशिप को इंक्रीज भी करेगा, इसके जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो अगर हम इसको ज्यादा करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, इसको हम कम करेंगे तो ये इसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो दिस इज एक्चुअली अ मॉडरेटर। अब एनी स्मार्ट स्टूडेंट वो ये कह सकता है कि सर ये मॉडरेटर तो बिल्कुल है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि सर अगर आप कुछ भी ना करें, इसको कॉपी करें और ऐसा करें ना कि आप, ये तो आपने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन अगर मैं इस तरह कर लूं तो सर ये तो आईवी भी बन सकता है कि इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, लाइब्रेरी होगी तब भी परफॉर्मेंस। ये तो आईवी भी है, तो इसको आप मॉडरेटर क्यों ले रहे हैं?
तो इसका जवाब जैसे मैंने पहले भी दिया कि इट डिपेंड्स, taking this variable as a moderator or an IV depends on our theoretical framework, depends on our theory as well as the literature that we have used. तो उसके मुताबिक ये फिर मॉडरेटर भी बन सकेगा, IV भी बन सकेगा डिपेंडिंग ऑन the theory that we are using, literature and the problem statement that we are having. So this is how this is the moderator that we are talking about at this point of time. This is moderating the relationship. अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, आप जब एक्सरसाइज को करें और मुझे आप उसका मॉडल भी देखिएगा. A moderating variable is a variable the presence of which modifies the original relationship between the independent and the dependent. For example, workforce diversity है, organizational effectiveness है. अगर मैनेजरियल एक्सपर्टीज भी बीच पे मॉडरेट करे तो ये इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा. मैनेजरियल एक्सपर्टीज अगर कॉम्प्रोमाइज है तो इनका रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन नहीं होगा, वीकन हो जाएगा. और आप ये भी नोट करो कि मैनेजरियल एक्सपर्टीज जो कि हमने यहाँ पे मॉडरेटर के तौर पे रखा हुआ है, ये तो यहाँ पे आईवी भी आ सकता है कि मैनेजरियल एक्सपर्टीज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होगी. यस, व्हाई नॉट. तो नाउ दिस इज अनदर, बट आप ये नोट करो कि इसके अंदर जो हमारे पास एरो है वो क्या है और कैसे इसके साथ ये लेकर चल रहा है. There are another variables. Let's have a look at this one. ये जो हम लोगों ने बात की थी, availability of reference manuals and number of rejects. Availability of reference manuals and number of rejects, ये already हमारे पास इनका relationship मौजूद है, लेकिन interest और inclination works as a moderating variable because either it strengthens or weakens the relationship between the IB and D. Now these are two exercises for you people to solve. इसको आप लोगों ने ना सिर्फ करना है बल्कि लिखना भी है. इसको लिख के पहले दो डब्बे बनाए एज एन IB एंड DB और फिर मॉडरेटर उसमें आइडेंटिफाई करें इसमें मॉडरेटर्स कौन कौन से हैं और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या समझ आई, मॉडरेटर समझ आया कि नहीं आया. सर फर्स्ट वन में क्लासरूम ट्रेनिंग जो है वो हमारा आईवी होगा और प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज हमारा डीबी होगा और इसमें हम एज ऑफ एम्प्लॉयज को हम एज ए मॉडरेटर ले सकते हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही. कि तो अब इसमें क्या है कि अगर मॉडरेटर क्या है कि अगर 60 से अबव एज है तो उनके लिए ये जो रिलेशनशिप है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन 60 से अगर कम एज है तो ये जो ऑफ द जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग है दैट विल हैव मोर इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज. बिल्कुल ठीक बात.
जी नेक्स्ट वन में क्या है भाई? सर इसमें जेंडर इंटरेक्शन ऑफ सर जो इंटरेक्शन हमारा IV या जॉब ओवर टाइम हमारा DV होगा, और जो वुमेन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास मॉडरेटर होगा, वुमेन फैक्टर या एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। जेंडर आप कहना चाहते जेंडर सर हमारा जेंडर हमारा जेंडर होगा सर, वुमेन पैकर्स ही है जेंडर। हैं? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो दैट इज गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आई होप कि इसकी जो रिसर्च, जो थेरेटिकल जो फ्रेमवर्क है वो भी ड्रॉ किया होगा, ऐसा ही है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। वो भी यस सर। अब आदत बनाना शुरू कर रहे हैं इसको ड्रॉ करने की। अगर अब आपको ये बात समझ आ गई, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच इज द मीडिएटिंग सर वेरिएबल एक मिनट, और द सर एक इंटरमीडिएट। मिनट, हेलो जी बताएं, पूछें। सर ये क्या ये आप सर बाद में बताएंगे सर इनकी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन सर, ये वेरिएबल्स की, उस मॉडरेटिंग वेरिएबल की सर? जी हाइपोथेसिस आगे आ रहे हैं, इसी आज ही आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है सर। आपका पॉइंट इज वेल टेकन। इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। अब ठीक है आपको सर। नजर आ रहा हो, कोई इसमें वो नहीं है। हाइपोथेसिस जो हमने बाद में भी तो करना है, अभी इसको खत्म कर लेते हैं साथ साथ ही। हाइपोथेसिस इसका क्या बनेगा? इसका हाइपोथेसिस ये बनेगा, इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मॉडरेट्स होना चाहिए the relationship between the availability of good library facility and student performance. This is it. अब कुछ लोग इसको इस तरह लिखते हैं, राइट? ज़ाबिस में ये वाला चलता जो मैंने आपको लिख के बताया। कुछ लोग इसको कुछ इस तरह वर्डिंग देते हैं, इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स strengthens the relationship between availability of goods, library facility and student performance. कुछ इसको अगर और भी अगर strengthen की बात नहीं लिखना चाहते तो कुछ इसको अगर आपका hypothesis इस तरह है कि weaken करेगा वो, तो आप weaken कर दो, weaken the relationship. So there are many. The point is, अच्छा ज़ाबिस में जो है ना वो ये चल रहा है, जो आपके IRS के evaluators हैं ना उनको मोस्टली ये चीज समझ आती है। ये लफ्ज मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ ना कि अभी ज़ाबिस में क्या चल रहा है। देखो, डू इन रोम एज रोमन्स डू, बस दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला। ज़ाबिस में जो सिक्का राइजुल वक्त है वो इस वक्त ये वाला चल रहा है। अभी अगर ये कुछ डिफरेंट हो गया तो हम आपको डिफरेंटली, लेकिन ये है कि ये मैं आपको इस तरह से भी बता रहा हूँ, एक तो बिकॉज आप लोगों को IRS की तैयारी भी करवाई जा रही है थ्रू दिस कोर्स, दूसरा मैं इस तरह से भी बता रहा हूँ ये चीज कि भाई ज़ाबिस में ऐसे चल रहा है। उसकी वजह यह है कि देयर आर अदर राइटिंग स्टाइल्स दैट यू मे विल एनकाउंटर व्हाइल रीडिंग डिफरेंट रिसर्च पेपर्स एंड अदर थीसिस। तो उसमें परेशान नहीं होना, आपने बस देखना अच्छा यार ये है तो यार ये मॉडरेटर की बात कर रहे हैं, दैट इज दैट वे आपको समझ आ जाएगी कि यार ये मॉडरेटर। ऑल यू नीड टू नो इज कि क्या वो स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है या इन्वर्स कर रहा है, बट इफ इट इज अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन IB एंड DV, yeah, it is affecting the relationship between two variables, and that is definitely a moderating variable. But this is that's the least that you should understand by reading any other journal, paper or a thesis जो कि ज़ाबिस से बाहर का है। जी, I hope I'm able to answer your question about hypothesis, writing hypothesis of this thing. Next है हमारे पास intervening variable. Intervening variable एक और नाम है मीडिएटिंग वेरिएबल्स का, मीडिएटर का एक और नाम है इंटरवीनिंग वेरिएबल। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये आपके सामने ये मेरा जो माउस का कर्सर है आपको नजर आ रहा होगा। देखो इसमें क्या है, IV affects DV through intervening variable, through mediating variable, यानी कि ये इसको अफेक्ट करता है और फिर ये इसको अफेक्ट करता है। If we have such a variable which works as a bridge between the IV and DV,
then that variable is known as intervening variable. नोट कीजिएगा, ये इसको इफेक्ट कर रहा है और फिर ये इसको इफेक्ट कर रहा है. इट इज नॉट दैट कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है. इट इज नॉट दैट, रादर इट इज द IV is affecting the intervening variable, and as a result IV intervening variable is affecting the DV. तो अच्छा, अब इसमें ये जो फर्दर थोड़ी सी बात लिखी हुई है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल इज अ DV फॉर IV. IV के लिए ये DV है और इस DV के लिए ये IV है. ये ऐसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं. So let's say we have a variable A affects C and we have a B in between. So let's have a look at this one. Now B is in between, देखो A affects B, B affects C. If this is the case, then B is known as the intervening variable. अच्छा, before I take questions from you, please जरा इसको देखिएगा. इसको 4-day work week will lead to higher productivity by increasing job satisfaction. तो इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे इसको लेके जाता हूं and let's do it. So we have four-day work week. ये काफी फेमस हुआ था 4-day work week. पता नहीं किसी ने कहा जी कि न्यूजीलैंड में ये कर दिया तो वो कर दिया, सो काफी इस पे बातचीत होती रही है. 4-day work week leads to, yeah, 4-day work week has an effect on job satisfaction, which job satisfaction से हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है. ये देखिएगा, नाउ दिस जॉब सेटिस्फैक्शन इज द इंटरवीनिंग और द मीडिएटिंग वेरिएबल. अब देखो, अब मैं दोबारा उस सवाल की तरफ आ रहा हूं जो कि मैंने खुद ही सवाल पूछ के जवाब दिया था. आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर ये बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बट ये भी तो हो सकता है. क्या हो सकता है सर? ये भी देखें ना, ये भी तो हो सकता है कि आप इसको इधर रखें, इसको कॉपी पेस्ट करें ना. ये देखें आप, ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, ये तो आईवी तौर पे भी आ सकता है कि जितनी 4-day वर्क वीक होगा तो प्रोडक्टिविटी होगी, और प्रोडक्टिविटी होगी तो ये होगा. ये तो इसमें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड द मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, आपने उनको मॉडरेटर लेना है या आईवी लेना है, या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को आपने इंटरवीनिंग लेना है या आईवी लेना है. तो ये डिपेंड करेगा. लाइक 99% ऑफ द केसेस में आप लोग उसमें दोनों को इस्तेमाल कर सकोगे एज आईवीज,
इंटरवीनिंग को भी आईवी के तौर पे ले सकोगे और मॉडरेटिंग को भी 99% केसेस में। सिर्फ 1% केस के अंदर कुछ ऐसा होगा कि उसमें बिल्कुल क्लियर होगा यार ऐसा नहीं होगा, ये तरतीब में चलेंगे। अब ये जब तरतीब में, तो फिर इसका जो फैसला कौन करेगा? ये थ्योरेटिकल जो थ्योरी, अंडरपिनिंग थ्योरी है, वो इसका फैसला करेगी, लिटरेचर उसका फैसला करेगा। अब जब मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये चीज तरतीब में चलेगी। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? ये चीज यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए। Surfaces, the intervening variable surfaces between the time x starts influencing the y. Time factor is important. So अब होगा क्या कि जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये इसको इफेक्ट करने लगेगी, तो जो आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है वो इट विल सरफेस इन बिटवीन द टू, और आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये तो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, ये असल में इसको इफेक्ट कर रहा है और फिर ये उसको इफेक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो a consideration that you need to look into while you are discussing the intervening variables. अच्छा जी, कोई स्टूडेंट ज्वाइन इन किया, मैं जरा उनको एडमिट कर लीजिए। अच्छा जी, यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो अभी हम आगे एक दो सवाल करते हैं ताकि आप मजीद इसको बेहतर समझ सको। ये Let's have a look at this. ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, सॉरी ये वाला, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी लीड्स टू क्रिएटिव सिनर्जी which leads to organizational effectiveness. अब ये आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही ये इसको इफेक्ट करेगी, जैसे ही वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आएगी, इफेक्टिवनेस अचीव होगी, तो मीनवाइल ही आपको एक वेरिएबल नजर आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार इसकी वजह से सिनर्जी क्रिएट हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास इफेक्टिवनेस आ रही है। तो यू कैन देन चेक कि यार ये वाकई ही आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है या नहीं, या इसको आप मजीद लिटरेचर में और थ्योरी के जरिए इसको सपोर्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे कि नहीं ये इसका वो है इंटरवीनिंग मीडिएटिंग वेरिएबल है कि नहीं। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं तो मुझे बताएं, बिकॉज अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने लगा हूँ ताकि आप लोग वो जो आखिरी चीज़ है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के अंदर वो भी आपको समझ आ जाए। दी क्वेश्चंस प्लीज फॉर एज फार एज द मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, मीडिएटिंग वेरिएबल्स आर कंसर्न। एनी क्वेश्चन? सर ये इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है ये पहले भी आ सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली टच करे? नहीं, आईवी से पहले नहीं आएगा। इट हैज टू बी एन इंटरवीनिंग, इट हैज टू बी इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके सर। अगर आईवी से पहले आएगा ना तो फिर आईवी आपका इंटरवीनिंग कहलाएगा। अच्छा, अब अगर इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने लगा हूं। कॉम्प्लेक्स कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। अब ये देखिएगा आपके पास, लेट्स से आई टेक दिस वन, सर अगर एक ही आईवी दूसरे आईवी को कर रहा है डायरेक्टली टच तो उसको क्या बोलेंगे? एक आईवी दूसरे आईवी को इफेक्ट कर रहा है। यस सर। ओके, ऐसे ले लेते हैं ना, जो आपने सवाल पूछा है उसको हम ऐसे ले लें। सॉरी, जैसे आपके पास ये दो आईवीज हैं, ये दो आईवीज हैं। अच्छा जी, ये तो ऑलरेडी रिलेशनशिप मौजूद है, इसको हम नहीं छेड़ते। आप कह रहे हो कि सर ये सिनेरियो कुछ ऐसे है कि मेरे पास एक आईवी है, वो दूसरे आईवी को भी इफेक्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप ऐसा है, और फिर ये जा रहा है
ऐसे ये आप बात कर रहे हो। यस सर। तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हुई हुई है। इसकी प्लेसमेंट मैं यहाँ पे कर दूं तो आपको शायद बात क्लियर हो जाए। ये देखो तो इनफैक्ट ये वही बन गया है जो कि हम ये देख लें तो ये हमारा मीडिएटर ही कहलाएगा, सिर्फ इसकी शेप यहाँ पे लिखी हुई थी। ओके अच्छा चलो, मैं आपके जो सवाल है ना मैं उसका एक और, आई होप कि मेरे पास वो इस वक्त पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको अभी गूगल करके आपके सामने गूगल करके आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बट आई एग्जैक्टली नो, मुझे समझ आ गया कि आपका सवाल क्या, पिक्चर एंड हेज मॉडल्स। जी अब आप जरा देखिएगा यहाँ पे, देखो ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा, ये जो आपने सवाल पूछा, आई एम सो सॉरी मुझे आपका नाम नहीं इस वक्त ज़हन में आ रहा, बल्कि मुझे पता ही नहीं आप कौन है, बिकॉज आई कैन नॉट सी यू। तो अब ये देखिएगा, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं जो कि आप लोग बना सकते हो, बना भी, इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो कॉमनली यूज्ड है वो ये वाले मॉडल्स हैं। ये सिंपल मॉडरेटर है, आईवी है, डीवी है और एक मॉडरेटर है। देन वी हैव आईवी है, डीवी है, देन वी हैव टू मॉडरेटर्स, ये भी पॉसिबल है। देन वी हैव आईवी डीवी, उसका मॉडरेटर, और फिर मॉडरेटर और इसके रिलेशनशिप के दरमियान एक और मॉडरेटर, ये भी पॉसिबल है। ये आपका सादा इंटरवीनिंग वाला मीडिएशन वाला है कि यहां से इसको और इसके थ्रू भी, लेकिन जो आप बात कर रहे थे वो भी आने वाला। ये देखिएगा, दिस इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। वी हैव दिस इंटरवीनिंग एंड आईवी डीवी का रिलेशन, मीडिएटर भी है और मॉडरेटर भी है। ये वाला मॉडल ये भी देखिएगा, दिस वन, आईवी और मीडिएटर के दरमियान मॉडरेटर, और यहां पे हमारे पास है आईवी और डीवी के दरमियान मॉडरेटर। एक और वेरिएशन देखिएगा, वी हैव टू, ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है और फिर ये इसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और पॉसिबली ये देखिएगा, दिस इज अनदर 3 मीडिएटर्स, ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है। अच्छा आप कहोगे सर ये जो बाकी एरोज लगे हुए हैं, बाकी एरोज के ऊपर मैं अभी आपसे बात करता हूँ सवाल से। ये देखिए 4 मीडिएटर्स, X is affecting mediator 1, mediator 2 is affected by mediator 1, mediator 3 is affected by mediator 2, and mediator 4 is affected by mediator 3, and then so on. Let's have a look at this one. ये वाला मॉडल जो है ये हमारे पास यहाँ बना हुआ है, आईवी मीडिएटर के दरमियान मॉडरेटर। ये देखिएगा, आईवी और मीडिएटर के दरमियान मॉडरेटर, एंड देन वी हैव दिस वन, दैट वाज मॉडल सा। ये देखिए, ये मॉडरेटर है हमारा, इन दोनों पे इफेक्ट कर रहा है।
Then we have दो moderators affecting IV and intervening variable relationship. Then we have another. Look at this one. There are two moderators. They are moderating IV DV relationship and IV mediating this relationship. This one, अब आपको ये, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं वेरिएबल्स. बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर एरो के ऊपर एरो है तो उसका मतलब क्या है, और अगर दो एरोस के दरमियान एक वेरिएबल है तो उसका मतलब क्या है. Look at this model number 12. So there can be many complex situations that we can actually work, और वो मौजूद होते हैं, किसी ना किसी ने उसके ऊपर जरूर काम किया होता है. और ये जो मैं आपको ये जो डायग्राम्स, ये जो रिसर्च मॉडल्स दिखा रहा हूं, ये पब्लिकेशन जो है इन लोगों की, पिचर एंड हेस की, ये है 2012-13 की. लेट्स हैव अ लुक एट वेयर इट इज. इसकी जो पब्लिकेशन ये देखिए 2013, ये 2013 में, यानी कि लाइक 7 और 8 ईयर्स अगो उन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ. तो हम कुछ यहां पर थे 19, पेज नंबर 19. तो इस तरह आप देख रहे हो कि किस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो हैं दे आर देयर. लोगों ने इस पे काम भी किया हुआ है और आप लोग भी इसके ऊपर अपना रिसर्च मॉडल जिस तरह का भी होगा वो बना के इसके ऊपर काम कर सकोगे. लेट्स गो टू द लास्ट वन and let's see how much complex is that. $74, $73, और ये अब आप देख रहे हैं कि किस किस्म के रिसर्च मॉडल्स मौजूद हैं. आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस, अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा, लेकिन बिफोर यू आस्क मी दैट क्वेश्चन मैं खुद ही उसका जवाब दे दूं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. A affects B and B affects C. मेक सेंस. बट हमने ये जो मॉडल्स देखे हैं इसके अंदर एक और एरो भी था. वो एरो क्या है, या व्हाट इज दैट? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. मैं वो एरो ड्रॉ करता हूं. मैं जरा इस डब्बे की शेप बड़ी कर देता हूं ताकि हम उस एरो को बजाय कि हम तवज्जो दें एरो की शेप के ऊपर, हम पढ़ाई पे तवज्जो दे दें. Now A affects B and B affects C. There was another arrow. वो ये वाला एरो था. It was this arrow. Now let's have a look at this one. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है A affects C directly as well as indirectly through variable B. वो ये कह रहा है. अब ये वाला मॉडल ये बोल रहा है हमें कि जनाब रीडर साहब, A, वेरिएबल A is affecting C directly and indirectly through B. बताएं जी, यहां तक ये इसमें कोई मसला तो नहीं है? तो अब अगर हम वापस चलें और जाके वही मॉडल्स देखें हेज के, ये देखें ये एंड यू एफ हेज, इन्होंने ये मॉडल बनाए हैं. अगर हम इन्हीं मॉडल्स को देखें तो अब आपको वो डायग्राम नजर आएगी और समझ भी आएगी. अच्छा, तो इसका मतलब ये है. ये देखें, X affects Y directly and through this variable Mi. ये देखिएगा, A affects C directly and through this variable B. उसने कैसे बनाया हुआ है इसी डायग्राम को? उन्होंने कुछ ऐसे बनाया हुआ है. तो मैं भी आपको बना के दिखाता हूं. उन्होंने कुछ कैसे बनाया.
A affects B, B affects C, and सर तो ये बी जो है हर दफा इंटरवीनिंग ही रहेगा या सिंपल आईवी भी रह सकता है? देखो ये तो इसमें मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस केस में बी इंटरवीनिंग है, इसमें भी इंटरवीनिंग है। ये वाली शेप और ये वाली शेप दोनों एक ही बात कर रही है। ये शेप इस केस में बी इंटरवीनिंग है। हाँ बी इंटरवीनिंग है। सही। सो आपका मतलब मुझे या ये दोनों चीज दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कि यार ये क्या था, सर ने तो ऐसे कराया था। ये देख लो दोनों एक ही बात कह रही है। देखो ए डायरेक्टली भी इफेक्ट कर रहा है सी को, ये देखो ए डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है सी को, ए जो है वो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर रहा है सी को थ्रू बी, ए इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है सी को थ्रू बी, दैट्स इट। तो ये हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गए, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हो गए। ये देख ले, ये भी आपके सामने है। सर तो बी डायरेक्टली भी तो इफेक्ट कर सकता है ना सी को? बी डायरेक्टली इफेक्ट अगर करेगा, ये देखना ये कर रहा है ना, यहाँ से बी इफेक्ट कर रहा है सी को, बिल्कुल कर रहा है, ये सी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि सर बी यहाँ पे लिखा हो एज एन आईवी, तो बिल्कुल कर सकता है वो, एज एन आईवी भी कर सकता है। ये देखें ये कर रहा है इसको सी को। देखो ये आपके रिसर्च मॉडल तो डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च मॉडल क्या है। अगर उसमें बी जो है इंटरवीनिंग है तो आप उसको इंटरवीनिंग के तौर पे यूज करोगे, अगर वो वहां पे एज मीडिएटर है तो आप एज मीडिएटर यूज करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर जिस तरह का आपका रिसर्च मॉडल है उसी तरह, जिस तरह की आपको रिसर्च कह रही है, आपका लिटरेचर रिव्यू आपको कह रहा है, आपने उसको वैसे ही लेकर चलना है। ओके अब हम आगे चलते, अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम आगे चलते। अच्छा, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सट्रॉनियस वेरिएबल्स। देखो हम लोग अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं हमने तो सिर्फ 1 2 3 4 वेरिएबल्स को पिक किया और उस पर रिसर्च की। एक्सट्रॉनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, देयर आर एक्चुअली infinite number of variables that exist which may affect XY relationship, but we do not take them as part of our, उन सारे वेरिएबल्स को हम एक्सट्रॉनियस वेरिएबल्स कहते हैं। इसको आप याद करने के लिए आप ऐसे रख सकते हो उसको ज़हन में, एक्सट्रॉनियस यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट यू द रिसर्चर इज नॉट केटरिंग इन द रिसर्च मॉडल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने पहले बात कर चुका हूं, वेदर अ वेरिएबल इज आईवी और डीवी और मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग इज डिटरमिन्ड बाय द रिसर्चर on the basis of literature review, problem statement and the underpinning theory। ये हम लोगों ने इसके ऊपर बात कर ली है। Relationship among variables has to be logical, और ये हाइपोथेसिस, अच्छा हाँ, मीडिएटिंग वेरिएबल्स का अभी तक हाइपोथेसिस मैंने आपको लिखना नहीं सिखाया। तो ये हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल है बी, इसका मैं हाइपोथेसिस लिखता हूँ, बी mediates the relationship between A and C. That's it. The variable Yes, sir. mediates the relationship between A and C. तो ये उसका वो है जो वेरिएबल का जो आपका मीडिएशन का जो हाइपोथेसिस है, कुछ इस तरह लिखा जाएगा। जी क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन मैं यहाँ पे आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ।
बिकॉज इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। और नया टॉपिक क्या है? अबाउट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3। तो यू मे एंजॉय 5 मिनट्स ब्रेक, कोई टी ब्रेक वगैरह आप लोग कर लें, चाय बना कर ले आए, एंड देन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें, पूछें। अब्दुल रहमान है। एक्चुअली मैंने पूछना था, इन अ गुड रिसर्च मॉडल हमारे पास कितने मैक्सिमम आईवीज, इंटरवीनिंग और मॉडरेटर्स अलाउड होते हैं या एक्सेप्टेबल होते हैं? इसकी कोई वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ओके, नो लिमिट। नो लिमिट। लेकिन जाहिर बात है, हमेशा जो हमारा रिसर्च मॉडल है वो डूएबल होना चाहिए। गॉट इट सर, थैंक यू।
ओके जी स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स से ज़्यादा ही हो गया है. लेट्स मूव नेक्स्ट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चनएयर. तो क्वेश्चनएयर्स के अंदर हम लोगों ने, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड्स में एक चीज रखी हुई है. दिस इज वन ऑफ द थीसिस. सॉरी, इस फॉर्म में खुल रहा है, इसको ओपन इन पीडीएफ. अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आप लोग पहले जरा इसका रिसर्च मॉडल बनाएं. द इफेक्ट ऑफ अब्यूसिव सुपरविजन ऑन एम्प्लॉय साइलेंस, mediating role of justice perception and moderating role of equity sensitivity. जी आप लोग मौजूद हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. प्लीज जरा इसकी रिसर्च मॉडल बनाएं. इसमें मीडिएटर भी है, मॉडरेटर भी है, आईवी भी है, डीवी भी तो खैर होना ही था, लेकिन 12. उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इसके क्वेश्चनएयर्स ढूंढने कैसे हैं, और उसके बाद उनको इनकॉर्पोरेट करना है और उनको फिर आगे लेकर चलना है. इसको हमने यूज करना है. इसको Sir, this mediating is known as interviewing. इंटरवीनिंग, यस, मीडिएटर इज इंटरवीनिंग, एक ही बात. Done, sir. बना लिया. Okay, let's have a look at the model. So here is the model that is there, जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया. So हम लोग देख रहे हैं हमारा आईवी जो है अब्यूसिव सुपरविजन है, हमारा डीवी एम्प्लॉय साइलेंस है, हमारी जो जस्टिस परसेप्शन हमारा मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग है, और एक्विटी सेंसिटिविटी हम लोगों का मॉडरेटिंग वेरिएबल. अब ये 4 वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने डाटा इकट्ठा करना है. डाटा इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है वो आपको पता है कि आप पॉपुलेशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे. पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करने के बाद सैम्पलिंग डिजाइन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से कोई एक यूज करेंगे. उसके बाद अगर आपका रिसर्च डिजाइन आपको ये इजाजत देता है कि आप क्वेश्चनएयर के जरिए डाटा इकट्ठा करें, तो आप इसका क्वेश्चनएयर्स ढूंढेंगे इन चारों के. यू विल फाइंड द क्वेश्चनएयर्स ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स. बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम क्वेश्चनएयर खुद बनाएंगे. देखिए, क्वेश्चनएयर बनाना जो है ना एक अच्छा खासा जान जोखों का काम है. इट टेक्स एटलीस्ट 1 year टू डेवलप अ क्वेश्चनएयर फॉर 1 वेरिएबल. तो प्लीज डू नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या एट दिस स्टेज, पीएचडी में आप जरूर करें या एमएस अगर आप थीसिस करेंगे तो बेशक करें, लेकिन एट दिस आईआरएस लेवल के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चनएयर डेवलप नहीं करना. रादर क्वेश्चनएयर को आपने अडॉप्ट करना है या अडेप्ट करना है. इसके ऊपर अडॉप्टेशन और अडेप्टेशन के ऊपर बात की है. तो सबसे पहले मैंने अब्यूसिव सुपरविजन का क्वेश्चनएयर ढूंढना है. अब मैं कैसे ढूंढूंगा? देयर आर मल्टीपल वेज. तो वन इज कि मैं इसको लिखूं और लिखूं साथ पीएचडी थीसिस. अब थीसिस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो वेरिएबल है वो, उसका जो क्वेश्चनएयर है वो आप जरूर एंड में अटैच करेंगे एज एन लेक्चर. तो मुझे लालच ये है कि इसको सर्च करने से ना सिर्फ मुझे ये है कि अच्छा खासा कंसोलिडेटेड मुझे मिल जाएगा, लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा दूसरे सुपरविजन के ऊपर, बल्कि मुझे सब क्वेश्चनएयर भी मिल जाएगा. सो ये देखें, एचसी के ही किसी जगह के ऊपर ये समरी 2019 अब्यूसिव सुपरविजन का इनका थीसिस का टॉपिक है. यकीनन इन्होंने एंड पे लगाया होगा. सो मजीद इंतजार किए बगैर हम इनके थीसिस पे आते हैं. ये देखें, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का, ये पीएचडी लेवल का है. कहाँ लिखा हुआ है पीएचडी?
ये पीएचडी थीसिस। सो हम सीधा आते हैं, इन्होंने 1.78 MB, सो लेट्स ओपन। नाउ दिस इज ओपन एब्यूसिव सुपरविजन हमारा। अब इसके अंदर क्या फायदा नंबर 1 ये है कि हम लोगों को सारा का सारा 2019 है ना, हम ये 2018 का है, हम लोगों को लेटेस्ट 2018 तक का लेटेस्ट एब्यूसिव सुपरविजन के ऊपर लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा। ये देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, मैं ऊपर यहाँ पे जा रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ये देखें जी, एब्यूसिव सुपरविजन के ऊपर सारा मुझे लिटरेचर जो कि लेटेस्ट है मुझे मिल गया, 2018 तक का लेटेस्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। आई एम वेरी होपफुल बिकॉज ये पीएचडी का है तो ये लेटेस्ट ही होगा। लेकिन इस वक्त जब ये लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चनएयर। ये देखें ऑपरेशनल डेफिनेशंस उन्होंने यहाँ पे की है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चनएयर। ये है जी क्वेश्चनएयर, पेज नंबर 71 के ऊपर मुझे पता चल जाएगा उन्होंने कौन सा क्वेश्चनएयर किसका उठाया है। ये इनका रिसर्च, हर हाइपोथेसिस के अगेंस्ट उन्होंने रिसर्च मॉडल बनाया हुआ है। ये इनका कंप्लीट रिसर्च मॉडल लग रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट रिसर्च मॉडल। आप देखते हैं, इज हाईली कॉम्प्लेक्स। एब्यूसिव सुपरविजन हैज, ये इंटरवीनिंग है, ये आईवी है, ये डीवी है, और ये आपका मॉडरेटर है। मॉडरेटर ना सिर्फ इन दो पे इफेक्ट कर रहा है बल्कि इन पे भी इफेक्ट कर रहा है। Anyway, let's go to the where we actually want to go about on the questionnaire. Data collection instrument. Researchers identified several methods for data collection. Among the most commonly used methods are survey methods, as compatible with the research design. The requirement of the research objective to collect quantitative data. तो उन्होंने डाटा क्वेश्चनर किया। अब क्वेश्चनर वाज कंस्ट्रक्टेड, इन्होंने ये तो कह रही है कि मैंने बनाया, including all the variables needed to be tested through the detailed scrutiny of previous studies. The questionnaire consisted of 2 major sections. First section was comprised of demographics. Previous, अच्छा ये important चीज है, the first section has to be demographics of, आप लोगों का भी यही होना चाहिए। और इन्होंने लगाया भी हुआ है अपेंडिक्स ए में। लेट्स गो टू अपेंडिक्स ए सीधा सीधा। जैसे मैं कह रहा था कि यू शुड नॉट डेवलप द क्वेश्चनएयर, इन्होंने डेवलप किया है, इसका पीएचडी थीसिस। तो हम रेफरेंसेस के भी एंड में, ये है जी अपेंडिक्स बी, ये आपका क्वेश्चनएयर आ गया। ये क्वेश्चनएयर में देखिए उन्होंने ये लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चनएयर के ऊपर ये आप लिखते हो, आई एम अ पीएचडी कैंडिडेट परसुइंग माय डिग्री फ्रॉम कॉम्पसेट्स, दिस क्वेश्चन इज फॉर द रिसर्च पर्पस, the data will be collected for purely academic purpose, your responsibility will be kept confidential and your anonymity will be ensured, I will be grateful. Personal profile, ये है जी demographics जिनकी वो बात लिखी हुई थी कि there are 2 portions of the questionnaire. The first portion entails the demographics of the respondent, उसका तजर्बा कितना है, एज कितनी है, जेंडर क्या है। तो पॉसिबली इन्होंने ये 3 डेमोग्राफिक्स सबसे पर्टिनेंट होंगे इनकी रिसर्च के लिए, इन्होंने ये पिक कर ली है। बट इन अदर रिसर्चेस देयर आर मल्टीपल डेमोग्राफिक वेरिएबल्स दैट आर यूज। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब जो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, फॉर एग्जांपल आपका जो रोल है, मैनेजरियल रोल के ऊपर हैं आप, सुपरवाइजर हैं, या आप इन दोनों में से कोई भी नहीं है। So there can be multiple demographic variables that are involved. अब ये आगे जी पहला पोर्शन यकीनन होगा हमारे पास अब्यूसिव सुपरविजन का। सवालों से अंदाजा लगाते हैं। My supervisor tells me that my thoughts and feelings are stupid. तो यकीनन ये पहला जो क्वेश्चन, अच्छा ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको हम आइटम कहते हैं। क्वेश्चनएयर के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो आइटम है। आइटम नंबर 1 ये हो गया, माय सुपरवाइजर पुट्स मी डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ये भी यकीनन आइटम है एब्यूसिव सुपरविजन का। तो तरतीब में ही लग रहे हैं। माय सुपरवाइजर मेक्स नेगेटिव कमेंट्स, सुपरवाइजर डजंट गिव क्रेडिट, माय कोवर्कर्स एंड आई हैव बैड एक्सपीरियंस, सुपरवाइजर माय कोवर्कर्स एंड आई हैव बैड। तो ये आपने क्वेश्चनएयर आप ओके यहाँ से आप पिक कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड, ठीक है ये पीएचडी का काम है, बट आई वुड रिकमेंड सम published
इंटरनेशनली पब्लिश्ड वर्क, बेशक वो पाकिस्तान के ऑथर्स का हो लेकिन किसी जर्नल में पब्लिश्ड हो तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी अनडाउटेडली कोई ऐसी वो परेशानी की बात नहीं है, यू कैन यूज इट। लेकिन जो आपके वैल्यूएटर्स हैं, दे वुड लव टू सी सम वर्क पब्लिश्ड इन, बेशक वो पाकिस्तानी का वर्क हो बट पब्लिश्ड इन सम इंटरनेशनल जर्नल। सो ये आपने क्या करना है कि आपने इस तरह ये पिक करके इस तरह के डब्बों में डाल देना है। ये डब्बों का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो आई जस्ट ड्रॉ वन फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो लिखना है अच्छा ये है जी आपका अपेंडिक्स, तो ये है, ये जो क्वेश्चन ये एक तो वो पीएचडी वाला थीसिस था ना, और ये है ये जो अभी हम देख रहे थे, इम्पैक्ट ऑफ अब्यूजिव सुपरविजन ऑन द एम्प्लॉय साइलेंस। इन्होंने जो क्वेश्चन देयर पिक किया हुआ है ये इनके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, जेंडर, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और ये उनका वो। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ या कैसे आप लोगों ने भी बनाना होगा। ये क्वेश्चन है कि टॉप पे लेट से मैं भी ये लिख लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन काफी कंटेंट होगा वो आप लोगों ने खुद अपना बनाना होगा, बनाना लिखना होगा। आपके पास एक गाइडलाइंस मौजूद होंगी दैट यू कैन यूज, तभी आपको ये क्वेश्चन रेडी जल्दी रेडी हो जाएगा। बेस्ट रिगार्ड्स में आप अपना नाम लिख देंगे एंड यूनिवर्सिटी का नाम भी। एंड सो दिस इज FI को उसने अंडरस्कोर कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले आपने बॉक्सेस, हर एक अपना स्टाइल है। सो आई अंडरस्टैंड 1 फॉर क्वेश्चनएयर एंड फिर 5 एंड देन 5 करने। सो आपने पहले लिखा जी आपका डेमोग्राफिक्स आप कवर करोगे, जेंडर, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद एजुकेशन, अच्छा सॉरी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो भी आप लिखना, जो भी आपके रिसर्च के पार्टिनेंट हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रोल या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं अभी यही ले लेता हूँ। तो जेंडर में आपने उनको इतना ही देना है कि वो उसको टिक मार्क करें, ना कि आप उसको क्वालिफिकेशन। आप अगर आप समझते हो कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लेवल के ऊपर आप बात करोगे तो जाहिर बात है वो मास्टर्स लेवल, या तो वो होंगे बैचलर्स डिग्री बिकॉज मोस्टली इंजीनियर्स, देन मास्टर्स, हो सकता है कि वो देयर आर स्टिल फ्यू PhDs, माइट बी 1 or 2, और अगर इसके अलावा भी कोई है तो आप अदर्स पे। एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स 0 to 5 years, ये आप अपने मुताबिक बना सकते हो। 11 to 15, ये लेकिन हर एक की बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें 0 to 5 की वजह से 0 की वजह से हो गया, लेकिन ये 5 years होंगे यहाँ पे, ये भी 5 years का ब्रैकेट है, ये भी 5 years की ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट का जो साइज है, जो स्पैन है, जो इंटरवल है, वो बराबर होना चाहिए। इसको मैं कह देता हूँ 20+। सिर्फ उसको हम मौका दे रहे हैं रिसर्चर को, जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है, कि वो सिर्फ इसको फिल करे, इसको टिक मार्क करे बस। तो पब्लिक, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, सेमी पब्लिक, सेमी प्राइवेट इसे कहते हैं, जो भी इसको टेक्निकल वर्ड है। और कुछ अगर आप डिफरेंट कर लो तो एनजीओ भी प्राइवेट के अंदर आती है, सो यू कैन ड्रॉप इट। तो ये आपके डेमोग्राफिक्स हो गए। इसको आप थोड़ा खूबसूरत करने के लिए आप, कुछ लोग काफ़ी इसको बेहतर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मर्ज किया और इन दो को कोई बॉक्स वगैरह डाल लिया ताकि वो उसको टिक मार्क कर ले। कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग इसको कैसा। अब आपका जो है वो वंस द डेमोग्राफिक पार्ट इज ओवर, अब उसको सिर्फ एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इनको मर्ज कर दो, और फिर यहाँ पे आप पहले वेरिएबल को पिक करो
लेट्स से ये पेरी, हाँ ये वही है, एब्यूसिव सुपरविजन है इनका भी। तो एब्यूसिव सुपरविजन ये आपने लिखना नहीं है, इस तरह मैं आपको इस क्लास के लिए समझा रहा हूँ कि मैं अब उसके क्वेश्चन डालने लगा, लेकिन जब आप लिखोगे ना उसके ऊपर अपने क्वेश्चन फ्लोट करने के लिए जब आप लिखोगे तो आपने नहीं ये लिखना नहीं है। सो माय सुपरवाइजर रिडिक्यूल्स विद, अब आपने हर एक को कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा, सारे के सारे उनको। इसको अभी हम खूबसूरत बनाएंगे, डू नॉट वरी। अच्छा, खूबसूरत के ऊपर मैं इस तरह से तवज्जो दे रहा हूँ बिकॉज आपका जो रिस्पोंडेंट है वो पहले ही परेशान है कि यार ये अहमद साहब इधर से आ गए तो मुझे एक्स्ट्रा काम करने को दे देंगे, ना तो मुझे कोई पैसे दे रहे हैं ना बस मुझे डाटा लेके जा रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं इतना तो उसमें एहसान करूँ या इतना तो उसको कहूँ कि यार इतना खूबसूरत है तो मैं कम से कम इसको तो सेल कर दूँ। अब ये मैंने अच्छा अब देखो ये लगना भी छोटा चाहिए। अगर मैं सफ़े के सफ़े भर के ले जाऊंगा तो वो कहेगा जी मैं नहीं कर रहा, आप जाएं कल आना, और कल जब आप जाओगे तो कहेगा जी अभी नहीं किया मैंने, परसों आना। तो आपने ये क्वेश्चन फिलअप, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है। द फॉलोइंग स्टेट, ये देखिए, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। सो आप यहाँ पे कहीं मेंशन कर सकते हो या यहाँ पे कहीं मेंशन कर सकते हो। इन द क्वेश्चनएयर 5 is equals to strongly agree। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो कि 1 means strongly agree, लेकिन जो आपकी कॉमन सेंस है वो उसके साथ फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि 1 is something which is lesser than 5, तो it should be disagree something। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप 1 को strongly disagree रखो। So 2 means disagree and 1 would mean strongly disagree। अब आपका जो रीडर है वो क्या करेगा? लेट्स से आप ये क्वेश्चन लेके आते हो कि सर अहमद ये जरा क्वेश्चन है मेरे रिसर्च का है, ये फिल अप कर दे। तो मैं कहता हूँ अच्छा जी, माय सुपरवाइजर रिडिक्यूल्स मी, मैं कहता हूँ स्ट्रांगली डिसएग्री, तो 1, तो मैं इस 1 को टिक कर दूंगा। तो अभी मैं इसको हाईलाइट रेड कर देता हूँ कि आपको अंदाजा हो कि मैंने क्या फिलअप किया है। माय सुपरवाइजर टेल्स मी माय थॉट्स और फीलिंग्स आर स्टूपिड, स्ट्रांगली डिसएग्री। सो माय बॉस डजंट डू दिस विद मी, अल्हम्दुलिल्लाह। माय सुपरवाइजर पुट्स मी डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, नो। जिसकी जो भी फीलिंग है, राइट, वो अपने मुताबिक, कोई इसको न्यूट्रल करेगा, कोई इसको स्ट्रांगली एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा, कोई स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा, कोई एग्री करेगा। अच्छा, ये जेंडर जो है वो मेल है, अपनी डिग्री के मुताबिक वो टिक मार्क कर देंगे, स्पीच के मुताबिक टिक मार्क कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देंगे।
तो आपके पास ये डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज जस्ट 5 आइटम्स ऑफ 1 वेरिएबल। देन इस तरह आपने सारे के सारे, ये तो हमने 5, अब दूसरा वेरिएबल इनका था ऑर्गेनाइजेशन, इनम का मुझे नहीं, दूसरा वेरिएबल क्या था बार उनके, उसके भी इनके 5 ही सवाल है। तो वो तो आपने इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स को एक क्वेश्चनेयर में बनाना है और कोशिश करें कि फॉन्ट साइज इतना हो कि रीडेबल हो और येट वो आपके जो क्वेश्चनेयर की लेंथ है वो बढ़ा ना दे। इट शुड, बेहतर तो ये है कि आपका क्वेश्चनेयर एक ही सफ़े पर आ जाए। उस तरह ये है कि आपकी फोटोकॉपिंग की कॉस्ट भी बढ़ती है और जो आपका रीडर है वो घबराता नहीं है कि यार ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन है मैं कैसे फिल करूंगा, या कल आ जाना, कल कभी नहीं आती ना उसकी और ना आपकी। तो ये 5 भी हो गए, फिर अगले 5 भी में, अगले 5 हैं जितने, अगले तो बहुत ज्यादा 13 है, 16 है। तो ऑल ऑफ दीज नीड्स टू बी इंक्लूडेड। ना जब आप एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, लेट्स से वी ओनली हैव 2 वेरिएबल्स। अब मेरा ये क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको थोड़ा सा मैं अब इस तरह का बना लूंगा ताकि ये रीडेबल भी रहे, अच्छा भी लगे। और डियर सर मैडम, माय नेम इज लेट्स से अहमद and I'm doing masters in HR Department of Environmental Sciences at Zabest। तो आप इसको अपने मुताबिक, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह की चीज़ है, लेकिन ये आप लोगों ने ठीक ठीक इसको ज़्यादा एहसन तरीके से इसको करना है। बेस्ट रिगार्ड्स, ये वो। अब ये क्वेश्चन ऐसे ये भी कॉपी करना है, ब्लैक इसको कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चनेयर आप लोगों ने ना सिर्फ बाई अपनी सैंपल के अंदर जो भी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी आपने यूज की है, आपने इसको फ्लोट कर देना है। नाउ दिस क्वेश्चनेयर, और उसके बाद ये जब आपके पास डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जब आपके पास डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो आप फिर डाटा एनालिसिस करो। डाटा एनालिसिस की अलग वर्कशॉप्स हैं जो मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को इन दिस कमिंग वीक, ताकि जो है ना हम डाटा को एनालाइज करना, इसका एनालिसिस करना सीख लें। तो अब होगा कि अच्छा, दूसरा जो सेक्शन है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुका है, डाटा एनालिसिस वो कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आप लोगों का सेक्शन अभी थोड़ा सा तफसील से क्योंकि पढ़ रहा है, तो ये चीज़ अभी आप लोगों की रहती है। जी, मुझे आप कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप पूछें अबाउट क्वेश्चनेयर। एनीवन? सर ये नंबरिंग से ज्यादा अगर हम इसको डिसएग्री स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? कैसे आप करना चाह रहे हो? स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 करना चाह रहे हो? वो सर मतलब नंबरिंग ना करें, हम इस पे लिखें जैसे 1 पे हम लिखे स्ट्रांगली एग्री, क्योंकि जितनी दफा वो जिसने क्वेश्चन फिल करना हो वो बार बार वो दिखेगा कि 5 पे क्या था, 1 पे क्या है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा कि हम इस पे ही कर लें बजाय नंबरिंग के हम इस पे लिख लें। It's up to you. It's totally up to you and your supervisor. आप इसको कैसा लेकर चलना चाहते हो? It's totally up to you. ठीक है? हाँ जी, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि probably the word effective ज्यादा होगा या कम होगा. It is your call and your supervisor's call. आप समझते हो कि वो वाला क्वेश्चनेयर का डिजाइन ज्यादा बेहतर है, यू कैन यूज दैट. इट इज जस्ट वन मेथडोलॉजी, वन मेथड दैट इज बीइंग टोल्ड टू यू कि ऐसा क्वेश्चनेयर आप ढूंढेंगे, क्वेश्चनेयर ढूंढेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चनेयर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर आप इसको फ्लोट करेंगे. फ्लोट करने के बाद डाटा आपके पास आ जाएगा और डाटा को हम प्रोसेस करेंगे. अब क्वेश्चनेयर, अब ये तो बन गया ना, इसके बाद क्वेश्चनेयर आपने सर्वे मॉन्की पे भी बना सकते हो, गूगल डॉक्स पे भी बना सकते हो,
फोटोकॉपी करवा के मूव करवा सकते हो, और आप 1 2 3 4 5 नहीं दिखना चाहते, आप स्ट्रांगली एग्री वाले लिखना चाहते हो, तो आप उसका भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि जो मैंने आपको ये कह दिया बस अब इससे हिलना नहीं है, आप बिल्कुल ये इट इज जस्ट वन मेथड, you can employ any other method that suits your research and you think यार वो ज्यादा बेहतर है, it's totally up to you. Thank you, sir. जी कोई और सवाल, anyone? एसपी में सर जी, अब्दुल अब्दुल रहमान रहमान, है, जरूर मैंने एक पूछें। क्वेश्चन पूछना था। या एक्चुअली सर मैंने पूछना था जो हम डेमोग्राफिक्स लेते हैं इसमें हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे? क्योंकि आज मैंने 2 सर्वे फिल किए, उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे लाइक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं हेजिटेट हो रहा था वो फिल हाँ, करने में। तो इसका स्टैंडर्ड क्या उसका है हमारे स्टैंडर्ड पास? यही है कि अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे एज पूछते हैं, तो एज अगर आप मुझे शेयर करो कि आपके पास जो क्वेश्चन ले आया था दैट यू थिंक, वो उसके अंदर जो 2 क्वेश्चन लिखे, दो आइटम्स जो थे वो डेमोग्राफिक पार्ट से वो थोड़े से पर्सनल लेवल के थे, मुझे बता सकते हैं वो क्या सवाल थे ताकि हम यहीं पे उसको डिस्कस करें। जी अब्दुल रहमान। ये सही, ये मैंने लिंक शेयर किया है सर 2 के। एक में तो इटसेल्फ नेम था जो कि आवाज तक बताना नहीं चाहिए, यू नो कुछ लोग गलत फिल कर देते हैं उसको, और हाँ, दूसरा इनकम इनकम पहले मुझे ध्यान में यही था कि इनकम वाला सवाल होगा। इनकम को मैं इधर ही डिस्कस कर, देखो इनकम और एज, दिस इज समथिंग दैट पीपल आर यू नो सेंसिटिव अबाउट। तो इनकम में आप हमेशा क्या करते हो, जैसे इनकम रेट जैसे में अब आपको नजर आ रहा होगा, इनकम अगर आपको पता है कि यार मेरे प्रोजेक्ट ये लोगों से डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो उनकी इनकम कम अज कम टू स्टार्ट विद बैचलर्स डिग्री वाला जो नया लड़का आया होगा उसकी 25,000 होगी, तो आप इनकम में ब्रैकेट्स देते हो कि 25K से लेके लेट्स से 50K तक। पीपल कैन, बजाय कि वो एग्जैक्ट अपना बताएं, वो अपनी अगर वो बता दें लिमिट, तो आप जो आपका मतलब ये है कि जो होते हैं रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर उसको फिल करके दे देते हैं 51K टू। अब दिस इज फॉर मी, ये ज्यादा आसान है मेरे लिए फिल करना देन द वन जिसकी आप बात कर रहे हो। बिल्कुल जी मुझे बोलते हैं हाँ जी हम सब आप बताएं आपकी पे कितनी है। इस तरह अगर आप मुझसे पूछो सर आपकी पे ब्रैकेट क्या है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है वो बताना कि मेरी पे ब्रैकेट क्या है। तो 76K से, तो नाउ दिस इज द बेटर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये दिस इज वन। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो सवाल इसमें लोग एक्सीडेंट होते हैं वो एज है। एज में भी आप ब्रैकेट्स देते हो। अब आपको पता है कि अच्छा एक बंदे ने बैचलर्स किया होगा, उसकी बिल्कुल जो फ्रेश भी होगा, तो उसकी जो एज है वो 23-4 तो होगी, तो आप उसको ब्रैकेट दे दो यार 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से लेट्स से 45, और आप लोगों को मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेबल में जाके ड्रॉ टेबल बना के एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ ये भी सर इस सेल को स्प्लिट कर लिया, इस तरह का काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नाउ अब ये हो जाएगा जी 46 प्लस। सो अब ये इट इज अ बेटर वे ऑफ आस्किंग एज देन एक्चुअली आस्किंग सर आपकी एज क्या है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है एज का, जैसे कि वो हमने ये इसमें देखा, इसमें जो एज पूछी गई थी, इसमें ये देखो, इसमें साफ साफ पूछा गया था हाँ जी आपकी एज क्या है। नाउ ये बताना बड़ा मुश्किल है सीधा सीधा कि मेरी एज क्या है, लेकिन इस पे बताना कंपैरेटिवली आसान।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डेमोग्राफिक्स के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब मैं साथ ये बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि डेमोग्राफिक्स बस सारे डेमोग्राफिक्स पूछ लेते हैं। प्लीज आस्क ओनली दोज डेमोग्राफिक्स जिसमें जो कि आपको पता है कि आपकी रिसर्च में उनका कोई इफेक्ट होगा, जो कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च में कहीं ना कहीं यूज करने। अगर यूज नहीं करने या वो यूज नहीं होंगे तो उनसे पूछने का फायदा भी कोई नहीं है, उल्टा दे आर द टाइम वेस्टर्स। ठीक है, तो डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, सच वेरिएबल्स जो कि इस्तेमाल नहीं करने आपको। जी, और कोई सवाल है तो पूछें। No questions, sir. That's it. दैट इज वेरी गुड। और बताएं। नो सर। ओके, ओके जी। अब आप लोगों ने जो अपनी नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट का जो अगला हिस्सा है ना, वो मैं अब आपको बताने लगा, बिकॉज आप लोग अपने मॉडल्स बना चुके हैं। सो ओके अब्दुल रहमान, आप शेयर किया, थैंक यू। बाकी मैं ये देख लेता हूँ कि आप एक्चुअली नेम, जेंडर, एज ब्रैकेट में दी हुई है, फुल टाइम। सर इसमें सैलरी वाला इशू सॉल्व हो गया था, बस वो जो नेम। अच्छा, वो नेम ही पूछ रहे थे। यस, आप, हाँ, ये नेम बिल्कुल पूछने की जरूरत, नेम का कोई अगर फायदा नहीं है तो फिर पूछने की जरूरत भी नहीं। सिंगल, मैरिड, ये ब्रैकेट दी हुई है, एज ब्रैकेट, सॉरी इनकम ब्रैकेट्स दी हुई। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन शॉर्ट ये कि अगर बहुत जरूरी है, उससे बगैर गुजारा नहीं है, तो इस तरह पूछ लें। लेकिन अगर जरूरत भी नहीं है और आपने पूछा भी सीधा सीधा हुआ है तो बहुत ज्यादती की है। So anyway, now let's come to the next coming assignment that you need to do, और उसके बाद हम अटेंडेंस लेते हैं। तो नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है कि find the relevant questionnaires as per your research model. Write the sources of each questionnaire. Sources का मतलब ये citations. And number 3 है आपके पास questionnaire, write the items from each questionnaire in one questionnaire to be used for your research. ये 3 पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। ठीक है जी, ये अब आपने कमिंग आपकी असाइनमेंट है, और मैं इसको यहाँ पे आप लोगों के साथ इसको क्लासरूम में भी अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये आज ही रिसीव हो जाए। ये थर्ड पॉइंट थोड़ा रिपीट हाँ कर ना, सकते हैं? आपने देखो, आपको एक आईवी का क्वेश्चन मिलेगा कहीं और से, दूसरे का मिलेगा कहीं और से, तो आपने उसको एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में लिखना है। ओके, गॉट इट सर। ये असाइनमेंट नंबर 3 इसको मैं कह रहा हूं।
ओके जी, जस्ट पुट लेट मी पुट दिस इनटू ऑर्डर एंड फिर मैं अटेंडेंस कॉल करता हूँ एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। जी जी एक्सक्यूज मी सर, ये तो था क्वेश्चन हमने फाइंड करना था इंटरनेट से। लेट से किसी कोई हमारे डिफरेंट टॉपिक और खुद क्रिएट कैसे करेंगे हम क्वेश्चन यार, अगर करना पड़ जाए तो, जस्ट इन केस। क्वेश्चन डेवलप करना Yes, sir. वो एक पूरी एक क्वेश्चन डेवलपमेंट पूरा एक कोर्स है, आप ये समझो। मैं आपको हल्का सा उसको हिंट करवा देता हूँ। सर ये असाइनमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मतलब हमने हर वेरिएबल के आइटम्स लिखनी है असाइनमेंट में। आपने हर वेरिएबल के आइटम्स को एक क्वेश्चनर की फॉर्म में लिखना है ताकि आप उसको फ्लोट करके डाटा कलेक्ट कर सको। ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक हो गया सर, वो एग्री है आपसे। माशाल्लाह जी, अगली क्लास हमारी अगले साल जनवरी में होगी इंशाल्लाह सर। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू पीपल, एवरीवन। थैंक यू। ओके जी, असाइनमेंट मैंने आप लोगों की क्लासरूम में शेयर कर दिया। नाउ अभी आप लोगों को वो मिल भी जाएगी। नाउ लेट अस मार्क द अटेंडेंस।